ترکیہ کے شہر استنبول میں دھماکہ، 6 افراد جاں بحق، 50 سے زائد زخمی۔ دھماکہ تقسیم اسکوائر کے قریب استقلال اسٹریٹ میں ہوا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر ڈاکٹر عارف علوی کی شدید مذمت، ترکیہ کے عوام اور حکومت سے مکمل یکجہتی۔ قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار، زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا۔ موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ افراد کی بحالی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ پاکستان میں حالیہ سیلاب سے آنے والی تباہی پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ سیلابی پانی سے متاثرہ آبادی وبائی امراض کا شکار ہو رہی ہے۔ حکومت کو متاثرین کی آبادکاری، خوراک اور گرم کپڑوں کی فراہمی کا چیلنج درپیش ہے۔ وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان کا مصر میں بین الپارلیمانی یونین اجلاس سے خطاب۔ مستقبل کے ترقیاتی منظرنامے کے بارے میں پاکستان آؤٹ لک 2035 شروع کرنے کا فیصلہ۔ موجودہ معاشی بحران کی روشنی میں طویل المدتی چیلنجز کا جائزہ لیا جائے گا۔ گزشتہ حکومت نے تصادم کا راستہ اختیار کیا، جس سے سرمایہ کاروں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی۔ معاشی استحکام اور قومی ترقی کے سفر کی بحالی اولین ترجیح ہے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال۔ لانگ مارچ کا مقصد ملک اور اداروں کو کمزور کرنا ہے۔ 4 سالہ دورے اقتدار میں عمران خان نے لوٹ مار، کرپشن اور مہنگائی کو فروغ دیا۔ سی پیک کو پس پش ڈال کر ملکی ترقی کا راستہ روکا گیا۔ پنجاب کے وزراء سڑکیں بند کر کے عوام کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ عمرانی فتنے کا مقصد نوجوان نسل میں گالم گلوچ کے کلچر کو پروان چڑھانا ہے۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف۔ T20 ورلڈ کپ کا فائنل دنیا کی 2 بہترین ٹیموں کے درمیان ہوا۔ سنسنی خیز فائنل دکھانے کے لیے ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں خصوصی اسکرینیں نصب کی گئیں۔ وزیر اطلاعات نے F9 پارک اسلام آباد میں PTV اسپورٹس کی جانب سے لگائی گئی اسکرین کی ویڈیو شیئر کی۔ مقبوضہ کشمیر میں 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوج کی تعیناتی، دنیا کی سب سے بڑی تعیناتی والا خطہ بن گیا۔ کشمیری عوام بدترین محاصرے میں زندگی گزارنے پر مجبور، حریت قیادت کا عالمی برادری سے بھارتی مظالم بند کرانے کا مطالبہ۔ کشمیر سے متعلق امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ دیرینہ مسئلے کا حل پاکستان بھارت مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ امریکہ نے نئی دہلی کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ اعلیٰ سطح پر اٹھایا ہے۔ مقبوضہ علاقے میں الیکشن سمیت تمام سیاسی حقوق بحال کیا جائیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو۔ بلوچستان میں سیلاب متاثرہ کاشتکاروں میں گندم کے بیج کی مفت تقسیم، 2 ارب 20 کروڑ روپے جاری۔ بیج 3,80,000 بوریاں خریدی جائیں گی۔ 1 لاکھ سے زائد کسان مستفید ہوں گے۔ اور بالائی علاقوں میں برف باری، اسکردو میں درجہ حرارت -5 اور استور میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ میدانی علاقوں میں سردی کا راج، اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا اور میں ہوں نازیہ کمل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ آپ رہیے PTV نیوز کے ساتھ۔ ہمارا رہبر سب سے بہتر، فرام دا ہاؤس آف ایگل اسٹار اینڈ رہبر۔ بریک کے بعد خبرنامے میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے شامل کریں گے افسوسناک خبر۔ ترکیہ کے شہر استنبول میں دھماکے سے 6 افراد جاں بحق اور 53 زخمی ہو گئے۔ استنبول کے گورنر علی ریکا نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ دھماکہ استقلال اسٹریٹ میں ہوا۔ زخمیوں کو علاج کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے دھماکے میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھونے والوں کی مغفرت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔
तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक इस्तांबुल हमला दहशतगर्दी की तरफ इशारा करता है। घिनौने हमले के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए मुतल्लिका इदारे काम कर रहे हैं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। ट्विटर बयान में वजीर आजम ने कहा कि हर तरह की दहशतगर्दी काबिल मजम्मत है। इस्तकलाल स्ट्रीट में होने वाले धमाके में पाकिस्तान तुर्किया के अवाम और हुकूमत से मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। वजीर आजम ने धमाके में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी इस्तांबुल की इस्तकलाल स्ट्रीट में होने वाले धमाके की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि दुख की घड़ी में तुर्किया की अवाम के साथ हैं। सदर ममलकत ने वाकई में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए जाँ बहक होने वालों के लिए दुआए मगफरत और वरसा के लिए सब्र जमील की दुआ की। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दूसरी सियासी शख्सियात ने भी इस्तांबुल बम धमाके की मजम्मत करते हुए तुर्किया हुकूमत और अवाम से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की भी दुआ की। नाज़रीन, वफाकी वजीर माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली से मुतासर अफराद की बहाली हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाले खतरात से निमटना होगा। मिस्र में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के इजलास से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब से आने वाली तबाही पहले कभी नहीं देखी गई। आलमी हिद्दत में इजाफे से मुस्तकबिल में और भी कुदरती आफात आएंगी। सैलाबी पानी से मुतासरा आबादी वबाई अमराज का शिकार हो रही है। उन्होंने कहा कि सैलाब से रेलवे, मवासलात, बिजली समेत बुनियादी ढांचे को 33 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान पहुंचा है। 33 मिलियन से ज़्यादा मुतासरीन सैलाब को सर्दियों से तहफ़्फ़ुज़ देना होगा, क्योंकि सर्दी की शिद्दत में होने वाले इजाफे से उनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो रही हैं। वज़ारत मनसूबाबंदी ने मुल्क के मुस्तक़बिल के तरक्याती मंजरनामे की तामीर के बारे में एक जामे स्टडी पाकिस्तान आउटलुक 2035 शुरू करेगी, जिसमें मौजूदा माशी बहरान की रोशनी में तवील मुद्दती चैलेंजेस का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने आउटलुक 2035 शुरू करने का फैसला एक इजलास की सदारत करते हुए किया, जिसको अगले साल बाकायदा शुरू किया जाएगा और ये पाकिस्तान के विजन 2035 और 2047 और तरक्की के लिए एक पेशखामा साबित होगा। आउटलुक की अहमियत के बारे में वफाकी वजीर ने कहा कि पहले दिन से हमारी अव्वलीन तरजीह मुल्क में माशी तब्दीली और इस्तेहकाम लाना और कौमी तरक्की के सफर को दोबारा शुरू करना है। पाकिस्तान आउटलुक स्ट्रेटेजिक दस्तावेज अक़वाम मुत्तहिदा के 17 पायदार तरक्याती अहदाफ के साथ मुंसलिक किया जाएगा। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि इमरानी फितने का मकसद पाकिस्तान तहजीब व इक़दार को नुकसान पहुंचाना है, मगर नौजवान बाशऊर हैं और वो इसके बहकावे में नहीं आएंगे। शेखुपुरा के कस्बे भिक्खी में मुस्लिम लीग नून यूथ विंग की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के नौजवान जमात का कीमती असासा हैं। मुतहर्रिक और मुनज़्ज़म कारकुन सियासी जमातों के लिए रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि इमरानी लॉन्ग मार्च का मकसद मुल्क और इदारों को कमज़ोर करना है। ये कैसी हुकूमत है कि पंजाब के वज़रा सड़कें बंद करके टायर जला रहे हैं। इमरान खान का मकसद नौजवान नस्ल से बड़ों का एहतराम ख़त्म करके गाली गलोच का कल्चर परवान चढ़ाना है। वफाकी वजीर ने कहा कि अपने 4 साला दौरे इक़्तिदार में इमरान खान ने मुल्क में लूट मार, करप्शन और महंगाई को फ़रोग़ दिया। उन्होंने कहा कि कौम जानती है कि कश्मीर का सौदा किसने किया और सी पैक को पसे पुश्त किसने डाला। खारिया में तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के बायस जीटी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जिसके बायस शहरियों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना हुआ। मार्च की वजह से जीटी रोड के अतराफ कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर होने की वजह से दुकानदार और खरीदार दोनों परेशान हैं। अभी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे T20 वर्ल्ड कप के हवाले से खुसूसी खबरें। हमारे साथ रहिए। हमारा रहबर सबसे बेहतर, ठंडे को ठंडा और गरम को रखे गरम। फ्रॉम द हाउस ऑफ ईगल स्टार एंड रहबर।
T20 वर्ल्ड कप की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। इंग्लैंड की टीम दूसरी मरतबा T20 चैंपियन बन गई। ICC T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेटों से कामयाबी समेटी। सैम करन मैच और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। तफसील ज़िशान क़य्यूम से। मेलबर्न में खेले गए बड़े मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीता और कंडीशंस देखकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तान ने 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 137 रन बनाए। ओपनर्स टीम को बड़ा आगाज ना दे सके और 29 के स्कोर पर पाकिस्तान की पहली विकेट गिर गई। मोहम्मद रिजवान ने 15, मोहम्मद हारिस ने 8, बाबर आजम ने 32, इफ्तिखार अहमद 0 और शान मसूद 38 रन बनाकर आउट हुए। बड़ी टीम है, अगली बार और बेहतर तरीके से वापस आएंगे। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। खबरनामा में अब कुछ बात करेंगे मकबूजा वादी कश्मीर की। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि कश्मीरियों को वहशियाना तरीके से दबाने के लिए 10 लाख से जायद भारतीय फौजी मकबूजा इलाके में तैनात हैं और मकबूजा जम्मू कश्मीर इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा फौजी तैनाती वाला खित्ता बन चुका है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि वहशियाना फौजी तैनाती ने मकबूजा इलाके में एक इंसानी बहरान पैदा कर दिया है और भारत की तरफ से अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को गैर कानूनी तौर पर मनसूख करने के बाद से कश्मीरी भारतीय फौजियों के बदतरीन मुहासरे में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा ख्वाजा फिरदौस और सैयद बशीर इंदराबी ने श्रीनगर में एक मुश्तरका बयान में भारतीय एजेंसियों की तरफ से हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की जायदादों को जब्त करने की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि भारत कश्मीर में जारी तहरीके आज़ादी को दबाने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो अपने मजमूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होगा। वर्ल्ड फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस के चेयरमैन डॉक्टर गुलाम नबी फाय ने इस्तांबुल में खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर इस वक्त तक मुसलसल बहरान का शिकार रहेगा जब तक कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक उन्हें अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करने का हक नहीं दिया जाता। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में अदम तहफ़्फ़ुज़, आए दिन छापों, क्रैकडाउन और नित नए हरबों ने कश्मीरियों की निस्फ से ज़ायद आबादी को खतरनाक तरीन नफ्सियाती और जहनी अमराज में मुब्तला कर दिया है। इसके नतीजे में दिल और दिमाग की बड़ी बीमारियां भी आम हो चुकी हैं। तफसील जानेंगे यासिर हुसैन से। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी हैं। पैलेट गन्स की गोलियों से 800 कश्मीरी जवान और बच्चे मुतासिर हो चुके हैं। भारत के अमराज चश्म के माहिरीन ने अपनी एक नई मेडिकल रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि पैलेट गन्स से जख्मी होने वाले 80% कश्मीरियों को बीनाई में कमी का सामना करना पड़ा। 2009 में होने वाले सर्वे के मुताबिक कश्मीर में मुख्तलिफ पुरतशद्दुद वाक़यात से तकरीबन 66% शहरी डिप्रेशन समेत मुख्तलिफ जहनी दबाव का शिकार हैं। 2015 में भारत की अपनी यूनिवर्सिटी और अमरीकी साइकोलॉजी रिसर्च ने मुश्तरका सर्वे में भी इस बात की निशानदेही की थी कि 18 लाख कश्मीरी शहरी जहनी तनाव में मुब्तला हैं। हाल ही में भारतीय अमराज चश्म के मुताबिक 2019 के बाद से हजारों नौजवान और बच्चे भारतीय फाशिस्ट हुकूमत की पैलेट गन्स की गोलियों का निशाना बने। इन नौजवानों और बच्चों में से 80% की बीनाई मुतासिर हुई या वो जिंदगी भर के लिए देखने की सलाहियत से महरूम हो चुके हैं। कश्मीर के अंदर हजारों की तादाद में नौजवान कम उम्र बच्चे जो है वो पैलेट गन का निशाना बने हैं। वहीं मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर में हिब्बा जान से लेके इंशा मुश्ताक से लेके हजारों की तादाद में बच्चे बीनाई से महरूम है। हम चाहते हैं कि आलमी बरादरी इस चीज का नोटिस ले, अक़वाम मुत्तहिदा इस चीज का नोटिस ले और भारतीय काबिज अफवाज को जवाबदेह ठहराए कि मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर में लिथल वेपन्स का इस्तेमाल
ख़त्म करके कश्मीरियों को हक खुद इरादत दिया जाए। इन रिपोर्ट्स और इंकशाफात की रोशनी में मजलूम कश्मीरियों ने आलमी इदारा सेहत और अक़वाम मुत्तहिदा समेत इंसानी हकूक के आलमी इदारों और आलमी बरादरी से अपील की है कि इन गैर इंसानी सरगर्मियों और इंसानी हकूक की पामालियों का सख्त नोटिस लिया जाए। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अमेरिका के जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर के नायब वज़ीर ख़ारिजा डोनाल्ड लू का कहना है कि कश्मीर से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। देरीना मसले का हल पाक भारत मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। वाशिंगटन में मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने भारत से मुतालबा किया कि मकबूजा इलाके में इलेक्शन समेत तमाम सियासी हुकूक बहाल किए जाएं। इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि इलाके में मीडिया अपना काम आज़ादाना तौर पर जारी रख सके। उनका कहना था कि अमेरिका ने नई दिल्ली के साथ मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मामला आला सतह पर उठाया है। डोनाल्ड लू ने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले बरसों में कश्मीर में अमन को यकीनी बनाया जा सकेगा। और सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी के 553वें जन्मदिन के मौके पर भारत समेत दुनिया भर में सैकड़ों सिख यात्रियों ने गुरुद्वारा साहब करतारपुर में अपनी मजहबी रसूमात अदा की। रिपोर्ट कर रहे हैं ताहिर जाफरी। बाबा गुरु नानक देव जी के 553वें जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से 2409 सिख यात्रियों समेत सैकड़ों यात्री करतारपुर पहुंचे तो मुतलका हुकाम ने यात्रियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। यात्रियों ने दरबार पर माथा टेका और मजहबी रसूमात में शिरकत की। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड इंतजामिया ने यात्रियों की तवाज़ो लंगर से की। सिख यात्रियों को गुरुद्वारा दरबार साहब की तामीर के हवाले से एक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। इस मौका पर सिख यात्रियों का कहना था कि पाकिस्तान में उन्हें बहुत प्यार मिला। सानू 6-7 दिन हो गए ने आया ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਪੱਖੋਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਆ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ जितनी भी ज्यादा लुक आफ्टर होंगी सी साडी उहदी कीती। सिख यात्रियों ने कहा कि भारत वीजों की शराइत में नरमी करे ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्री पाकिस्तान आ सकें। हम तो चाहते हैं कि एवरी डे जो है कम से कम 4 से 5 हज़ार लोग आएँ ताकि यहाँ के इंतज़ाम देख के उनको भी हृदय है जो वो ठंडक पड़े। उनको इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं, जो रिलीफ दे सकते हैं संगत को वो मिल जानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत यहाँ आए, नतमस्तक हो और इसका फ़ायदा लिया जा सके। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ नहीं सी पर प्यार मिला, ਸਾਨੂੰ बहुत प्यार मिला। सिख यात्री रात गुरुद्वारा दरबार साहब में ही क़याम करेंगे। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए कमालिया में रैली निकाली गई। शरका ने पाक फौज के हक में फलक शगाफ नारे लगाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाक फौज हमारी रेड लाइन है, इसे मुतनाज़ा बनाने वाले बैरूनी साजिश पर अमल पैरा है। पाक फौज के साथ यकजहती के इजहार के लिए मिंजनाबाद में भी रैली निकाली गई। शुरका ने इजहार ख्याल करते हुए रुकन कौमी असम्बली मियाँ अब्दुल गफ्फार और दूसरे मुकर्ररीन ने कहा कि बैरूनी फंडिंग का फितना पाकिस्तानी अवाम खुसूसन नौजवानों को गुमराह करने की कोशिशें कर रहा है। पाक फौज और अवाम के दरमियान नफरत फैलाने वालों को बेनकाब किया जाएगा। बुरेवाला में भी पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई। शुरका ने सियासत नहीं रियासत बचाओ के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि पाक फौज के खिलाफ बयानिया एक साजिश है। फौज हमारी सरहदों के मुहाफिज है, कौम पाक फौज के साथ है। जाफराबाद में एक बड़ी रैली निकाली गई। शुरका ने इल्जाम और बहतान नामंजूर के मजम्मती प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। उनका कहना था कि पाक फौज के खिलाफ मफाद परस्त अनासिर की जबान दराजी कबूल नहीं। अवाम पाक फौज के खिलाफ साजिशी अनासिर की कोशिशें कभी कामयाब नहीं होने देंगी। मिट्टी में भी पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए और मुल्क के खिलाफ तमाम साजिशों को नाकाम बनाने के अज़्म का इजहार किया। कुछ मजीद खबरें और रिपोर्ट्स भी होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हमारा रहबर सबसे बेहतर फ्रॉम द हाउस ऑफ ईगल स्टार एंड रहबर।
नाज़रीन, कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स का इदारा दिफाई साजो सामान की तैयारी के साथ मुल्की मईशत में भी कलीदी किरदार अदा कर रहा है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद जुबैरुद्दीन। मुल्क में ऐसे इदारों की कमी नहीं जो आला मेयार को मद्देनजर रखते हुए खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ बैरूनी मांग को भी पूरा करते हुए मईशत के फ़रोग के लिए अपना हिस्सा मिला रहे हैं। कराची शिपयार्ड का इदारा भी जहाज साजी की सनत में मुल्क की दिफाई पैदावार की तलब को पूरा करने के साथ साथ बड़े पैमाने पर लोगों के रोजगार की ज़रूरियात को पूरा करने और जहाज़ों की मरम्मत साजी से लेकर बैरूनी मांग को भी पूरा कर रहा है। कराची शिपयार्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर रियर एडमिरल सलमान इलियास कहते हैं कि ये इदारा खुद इन्हिसारी की जानिब गामजन है और मुस्तकबिल के लिए भी कई बड़े प्रोजेक्ट ज़ेरे तकमील हैं। ओवर द ईयर्स हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं और ग्रेजुअली हमारा जो मिशन है, जो हमें मिनिस्ट्री डिफेंस प्रोडक्शन और नेवी ने दिया है कि हम अपने आप का इंडिजनाइजेशन कंपोनेंट को मैक्सिमाइज़ करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दुनिया के किसी भी स्टैंडर्ड का हाईएस्ट क्वालिटी का वॉरशिप बना सकते हैं, पोर्ट क्राफ्ट बना सकते हैं। इस वक्त हम सबमरीन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और इसके साथ साथ एक कराची पाकिस्तान में एक लार्ज एम्प्लॉयर हैं उस वर्क फोर्स के, जो हमारे जो मेहनत का जवान है वो हमारे पास एम्प्लॉयड है और एक हाई स्टैंडर्ड पे काम कर रहा है। इदारा फनी तरबियत फराहम करने के साथ साथ इंटर्नशिप के जरिए भी स्टेट ऑफ द आर्ट खिदमत अंजाम दे रहा है। 25,000 से ज़ायद अफराद की हम ट्रेनिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि बिल्कुल यंग एंट्रेंट्स होते हैं, यंग इंजीनियर्स, डिप्लोमा होल्डर्स, उन सबको हम ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं और अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ये और बढ़ते चले जाते हैं। बैक वक्त कई जहाज़ों की मरम्मत, जहाज़ों की तैयारी और दौरे हाजिर के मुताबिक जिद्दत को अपनाते हुए आगे बढ़ना इस इदारे को दीगर इदारों से मुमताज करता है। 1956 से कायम कराची शिपयार्ड ने जहां मुल्की मईशत में खातिर खा अपना हिस्सा डाला है, वहीं दिफाई पैदावार के एतबार से भी इस इदारे ने खातिर खा नाम कमाया है। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। बलोचिस्तान में सैलाब मुतासरा काश्तकारों को मुफ्त गंदम के बीजों की तकसीम के लिए 2 अरब 20 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। कोयटा में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि काश्तकारों को बीज बिला मुआवजा फराहम किए जा रहे हैं। इजलास को बताया गया कि गंदम के बीजों की 3,80,000 बोरियां खरीदी गई हैं। प्रोग्राम से बलोचिस्तान के 1 लाख से ज्यादा किसान मुस्तफीद होंगे और गंदम की किल्लत का खात्मा होगा। बीजों की शफाफ तकसीम यकीनी बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम निगरानी कर रही है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कराची में अख्तर कॉलोनी बाजार का दौरा किया। उन्होंने दुकानदारों और खरीदारों से मुलाकात की और उनके मसाइल मालूम किए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मसाइल हल करने के लिए इख्तियार नहीं, नियत और इरादा ज़रूरी होता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। अवाम के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से फलाही तंजीम अखुवत फाउंडेशन के सरबराह डॉक्टर अमजद साकिब ने लाहौर में मुलाकात की, जिसमें सैलाब ज़दगान की बहाली, मकानात की तामीर और सैलाब मुतासरीन को सैलाब के ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए काम करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि सैलाब ज़दगान को सैलाब के समाजी, माशी और नफसियाती असरात से बाहर निकलने में काफ़ी वक्त लगेगा। गवर्नर ने बहावलपुर इकनॉमिक डेवलपमेंट फोरम की तरफ से 1.5 करोड़ रुपए का चेक अखुवत फाउंडेशन को पेश किया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब का मुकम्मल एहतराम किया जाता है। हम मजहबी आज़ादी और हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म हैं। लाहौर में अक़लियतों के माइनॉरिटी राइट्स फोरम के चेयरमैन सैमुअल प्यारा से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि क़याम पाकिस्तान से अब तक मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम में अक़लियतों का किरदार काबिल तहसीन है। इस मौके पर सैलाब मुतासरीन की बहाली के हवाले से कोशिशों और अक़लियतों के हुकूक़ के हवाले से भी बातचीत की गई। और नाज़रीन, पंजाब और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया को सिस्टर स्टेट करार देने के मुआहदे के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। कानून साज असम्बली कैलिफोर्निया की अप्रोप्रिएशन कमेटी के सरबराह ने वज़ीर आला पंजाब को कैलिफोर्निया आने की दावत दी है। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब और कैलिफोर्निया के दरमियान सिस्टर स्टेट रिलेशनशिप मुआहदे के हवाले से उमूर का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि मुआहदे से तिजारती, माशी, कारोबारी ताल्लुकात में इजाफा होगा। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने ज़िला नगर की दूर अफ्तादा वादी बरछलत का दौरा किया। इस मौके पर मुख्तलिफ अवामी मफूद से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि सूबाई हुकूमत दूर दराज इलाकों की यकसा तामीर और तरक्की के लिए कोशां है।
انہوں نے کہا کہ عوام سے کیے گئے تمام وعدے پورے کریں گے، علاقے کی پسماندگی دور کر کے اسے ترقی دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان میں مقامی سطح پر گندم کی کاشتکاری کے فروغ کے لیے خصوصی منصوبہ شروع کر رہے ہیں، جس کے ذریعے مقامی کاشتکاروں کو امدادی قیمت پر گندم فراہم کی جائے گی۔ کچھ بات کریں گے کورونا صورتحال کی۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 5559 کورونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کے اعداد و شمار کے مطابق 42 افراد کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ مثبت کورونا ٹیسٹ کی شرح 0.76% رہی، جبکہ کورونا وائرس سے کوئی مریض جاں بحق نہیں ہوا۔ 53 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ اور اب ڈینگی کی صورتحال کی بات کریں تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر سے ڈینگی کے 165 مریض رپورٹ ہوئے۔ لاہور سے 72، گجرانوالہ سے 16 اور راولپنڈی سے 27 نئے مریضوں میں ڈینگی کی تشخیص ہوئی ہے۔ رواں سال کے دوران اب تک ڈینگی سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 38 ہو گئی ہے۔ پنجاب بھر میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 17,217 ہو گئی ہے، جس میں 7,425 مریضوں کا تعلق لاہور سے ہے۔ صوبے کے مختلف ہسپتالوں میں 809 مریض اور لاہور میں 393 ڈینگی کے مریض زیر علاج ہیں۔ شہر قائد میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 52 افراد ڈینگی کا شکار ہوئے۔ حیدرآباد ڈویژن میں 40 اور سکھر ڈویژن میں 3 افراد ڈینگی کا شکار ہوئے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبہ سندھ میں 95 افراد ڈینگی میں مبتلا ہوئے۔ رواں ماہ کے دوران صوبے میں 1708 افراد، جبکہ سال 2022 میں اب تک 20,779 لوگ ڈینگی کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ خیرپور گمبٹ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس ہسپتال میں صحت کے شعبے میں انقلابی اقدامات جاری ہیں۔ تفصیل بتائیں گے نعمان چنہ اپنی رپورٹ میں۔ حکومت سندھ جدید آلات سے لیس اسپتالوں کے ذریعے غریبوں کو عالمی طرز کا مفت علاج فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے، جس کی مثال ضلع خیرپور کے شہر گمبٹ میں قائم گمبٹ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس ہے، جہاں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر سے آنے والے مریضوں کو دل، جگر، گردوں، کارنیا اور بون میرو جیسے مہنگے ترین علاج کی جدید سہولیات فراہم کرنے کے ساتھ کینسر کے جملہ اقسام کا ایڈوانس طبی آلات سے مفت علاج کیا جا رہا ہے۔ گمبٹ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کے شعبہ نیوکلیئر میڈیسن اینڈ کینسر کیئر ریسرچ سینٹر میں انسٹال کی گئی ایڈوانس مشینری میں انٹرا آپریٹو ریڈیو تھراپی، پیٹ سی ٹی اسکین، سائیکلوٹران، میموگرافی، گاما نائف و دیگر جدید طبی آلات سے کم آمدنی والے افراد کے لیے دنیا کے مہنگے علاج کی مفت سہولیات فراہم ہو رہی ہے۔ یہ ایک سسٹم ہے جہاں ہر ٹریٹمنٹ ان کو کینسر کی مل جاتی ہے، آپریشن بھی ہو جاتا ہے، اور ڈیورنگ آپریشن اگر وہ کینسر نکال دیتے ہیں تو اس کی سائٹ کو ادھر ہی ریڈیشن ہو جاتی ہے۔ کمپیوٹرائز سسٹم ہے اور اس حساب سے جو پیشنٹ کا پلان ہوتا ہے، جہاں پہ ڈیزیز ہوتی ہے وہاں پہ ریڈیشن لگتی ہے، اور نارمل ٹیشو اس کے بالکل جو ہے نا ان کو ریڈیشن نہیں لگتی۔ کینسر کے مریض خصوصاً کم آمدنی والے غریب افراد کینسر کے مہنگے علاج کی مفت فراہمی پر ادارے کی کاوشوں کو قابل تحسین قرار دے رہے ہیں۔ یہ میرا ابو ہے جس کے ساتھ میں آیا ہوا ہوں، پیشنٹ ہے، تو الحمدللہ پہلے سے بہت فرق ہے ابھی۔ تمام ہی اسپتال لگائے نا، میں چاہتا ہوں سندھ میں پہلو نمبر ہے۔ دنیا کی جدید اسپتالوں کی طرز پر قائم گمبٹ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس نے آج کینسر کے مریضوں میں صحت مند زندگی کی امید پیدا کر دی ہے۔ نعمان چنہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، نوشہر و فیروز۔ اور ملک بھر میں میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلوں کے لیے انٹری ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں 2,04,000 سے زائد طلباء نے شرکت کی۔ تفصیل بتا رہے ہیں سمیع اللہ۔ ملک بھر میں میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلوں کے لیے انٹری ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے 7 اضلاع میں مجموعی طور پر تقریباً 28,000 طلباء نے ٹیسٹ دیا۔ سندھ میں 4 مراکز قائم کیے گئے، جن میں کراچی، خیرپور، نواب شاہ اور جامشورو شامل ہیں۔ کراچی میں NED یونیورسٹی، ڈوو یونیورسٹی اوجا کیمپس اور لیاقت میڈیکل یونیورسٹی جامشورو میں امتحانات منعقد ہوئے۔ UHS کے زیر اہتمام پنجاب کے 8 شہروں میں MD کیٹ کا امتحان ہوا، جس میں 80,000 سے زائد امیدواروں نے ٹیسٹ دیا۔ گجرانوالہ انٹری ٹیسٹ میں مختلف اضلاع سے 6,195 امیدواروں نے حصہ لیا۔ جموں و آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے طلباء اور طالبات کا انٹری ٹیسٹ شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی میں ہوا۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ تمام ترک مشکلات کے باوجود MD کیٹ کا امتحان ملک بھر میں اور بیرون ملک ایک ہی دن کامیابی کے ساتھ منعقد ہوا۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ کامیاب طلباء مستقبل میں طبی پیشے
और पाकिस्तान की कदर में इजाफा करेंगे। वफाकी वजीर ने MD कैट इम्तिहानात के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन काउंसिल के किरदार को भी सराहा। उन्होंने कहा कि तमाम पब्लिक सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स और इम्तिहानी सरबराहान ने भी इम्तिहानात में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए बेहतर काम किया है। MBBS में दाखिले के लिए MD कैट इम्तिहान में कम से कम 55%, जबकि BDS में दाखिले के लिए MD कैट में कम से कम 45% नंबर लेना लाजिम है। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। दरबार साहब करतारपुर में दुनिया भर से आने वाले सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के साथ साथ पाकिस्तानी मसनूआत की खरीदारी में भी दिलचस्पी ले रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इरफान खालिद से गुफ्तगू करते हुए सिख यात्रियों ने कहा कि वो ये सौगात अपने प्यारों के लिए खरीद रहे हैं। इंडिया वाघा बॉर्डर के ज़रिए 2000 से ज़ायद जो सिख यात्री दरबार साहब करतारपुर पहुँचे हैं, वहाँ उन्होंने मजहबी रसूमात अदा की है। अब वो दरबार साहब करतारपुर के बाज़ार में मौजूद है, शॉपिंग कर रहे हैं। सरदार जी, पाकिस्तानी मसनूआत को कैसा पाया और क्या क्या खरीदारी की आपने? आप वाघा बार्डर से आए तो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁੱਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵਿਹਾਰ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਈ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀ ਕਿ ਆਹ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਆਰ करना चाहिए, किरत करनी चाहिए, किरत करके वंड के छकना चाहिए। जी बिल्कुल जी, दरबार साहब में आने वाले जो सिख यात्री हैं, उनका कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो इक़दाम किए गए हैं, उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है। उनके लंगर जो उनके मेडिकल जो कैंप बनाए गए हैं, बेहतरीन इक़दाम किए गए हैं। मौसम सरमा में आज़ाद कश्मीर के बासी सर्दी की शिद्दत का भरपूर मुकाबला करते हैं। यकबस्ता मौसम में यहाँ के मकीन कैसे जिंदगी बसर करते हैं, ये बताएंगे अदील अहमद खान। सर्द धुंधली शामें, नरम सी धूप, पानियों की सुस्त रवानियाँ, दरख्तों की शाखों से गिरते जर्द पत्ते मौसम की तब्दीली का ऐलान कर रहे हैं। पहाड़ों की सफ़ेद पोशी, दूर गांव के घरों से उठता धुआं अलामत है कि मौसम सरमा अपनी बिसात बचा चुका है। आज़ाद कश्मीर के देही इलाकों में मौसम सरमा के आगाज़ से ही जाड़ों के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लोग सख्त मौसमों के लिए लकड़ियां, ईंधन और खुराक ज़ख़ीरा करना शुरू कर देते हैं और हर कोई इस जल्दी में होता है कि बारिशों और बर्फबारी से पहले पहले अपने मांदा काम निपटा ले। सबसे पहले लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं, 4 महीने के लिए राशन बर्फबारी की सूरत में इकट्ठा करते हैं और ये हमारे लिए गुजर बसर बड़ा मुश्किल होता है, इसका हम पहले से बंदोबस्त करते हैं। देही इलाकों के रवायती कच्चे चूल्हों में लकड़ी की आग के अलाव रोशन होने लगते हैं। लोग सरे शाम ही आग के करीब आ बैठते हैं और अपने खानदान के साथ घुल मिल जाते हैं। यही वजह है कि देही इलाकों में खानदान और कुंबों के दरमियान कुर्बतें और समाजी कदरें आज भी किसी न किसी तरह से कायम हैं। मौसमों की तब्दीली हमेशा इंसानी ज़िंदगी और तहजीब व तमद्दन पर असरअंदाज होती रही है, ताहम ये तब्दीली आज़ाद कश्मीर के इन देही इलाकों में ज़्यादा नुमायाँ नज़र आती है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। कराची में मारूफ मुजस्समा साज अंजुम अयाज के खूबसूरत फनपारों की नुमाइश हुई। नुमाइश के अहवाल आयशा आफरीन से जानते हैं। और संतराशी की तारीख लाखों साल पुरानी है। मारूफ मुजस्समा साज अंजुम अयाज ने दोनों फनून को बाहम मिलाकर ऐसे फनपारे तख्लीक किए जो अपनी मिसाल आप हैं। इन फनपारों को तख्लीक करने के लिए पाकिस्तान भर से नायाब पत्थर तलाश किए गए और कड़ी मेहनत और हाथ की कारीगरी से इन पर अस्माए हुस्ना तराशे गए। अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसके नाम लिखूं। जो पहाड़ से, दरिया से, समंदर से छोटे छोटे पत्थर इतने खूबसूरत, इतने रंगीन, तो उनकी नेमत है कि ये अल्लाह ताला की कि पाकिस्तान में इतना बड़ा पत्थर है और मैंने काट दिया है और वो उस पर अल्लाह के नाम लिख दिए हैं। शायकीन फ़न की जानिब से पत्थरों पर कनिंदा अस्माए हुस्ना को खूब दादे तहसीन पेश की गई। पत्थरों को काटना, तराश करना बहुत मुश्किल काम है, मगर किस खूबसूरती से और नफासत से काम किया है अंजुम ने कि वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। बहुत ही यूनिक ये एग्जीबिशन है। ये पत्थर इन्होंने सालों ढूंढे हैं और हर मुख्तलिफ रंग और नस्ल का पत्थर है
और मुख्तलिफ जगहों से ये पत्थर इन्होंने जमा किए हैं। अमरोहा से ताल्लुक रखने वाले मुजस्समा साज अंजुम अयाज की खत्ताती में बेहतरीन फनकाराना सलाहियतों की एक दुनिया मोतरफ है, लेकिन ये खूबसूरत खत्ताती करके उन्होंने अपने फन का हक अदा कर दिया। पत्थरों पे अल्लाह के बाबरकत नाम की ये खूबसूरत और मुनफरिद खत्ताती आर्टिस्ट की अपने खालिक से मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। लाहौर में मुख्तलिफ मुसव्वरों की खताते की दिलकश नुमाइश जारी है जो 18 नवंबर तक जारी रहेगी। रिपोर्ट कर रही हैं शुमाइला शब्बीर। खताती फनून लतीफ़ा की एक मुनफरिद किस्म है जिसमें पाकिस्तानी खतातों ने हर दौर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। लाहौर की एक आर्ट गैलरी में जारी खताती की खूबसूरत नुमाइश पाकिस्तान के खतातों की महारत की अक्कास है। नुमाइश में खताती में न सिर्फ रिवायत को बरकरार रखा गया बल्कि जदीद खुतूत और इनफरादियत भी नुमायां थी, जिनमें मुसव्विरों ने कलम के जरिए कैनवस पर अपने एहसासात का इजहार किया है। इस्लामी खताती में हमने मॉडर्निटी को और जदीद पेन को शामिल किया ताकि इसको मजीद आगे बढ़ाया जा सके। मेरा काम जो है वो मॉडर्न खत में आता है और बाकी यहाँ पे ट्रेडिशनल भी हैं जिसे रवायती खत कहते हैं। रवायती ख़त है और मॉडर्न ख़त है, ये दोनों जो है ना इस किस्म के काम किए लोगों ने। और इसको दूसरा ये कैलीग्राफी को पेंटिंग्स में लेके आए हैं। ज़्यादातर कलर पैलेट आप देखेंगे तो कोल्ड कलर्स में आपको नज़र आएंगे जो आंखों के लिए सूदिंग और इस तरह के कलर्स यूज़ होते हैं, तो वो रिलेट करें आयत के साथ और कुरान अल्लाह ताला की नेमतों के साथ रिलेट करें। नुमाइश में रखे फनपारों में रब्बुल आलमीन से अकीदत और मोहब्बत के रंग बिखेरे गए थे जिसे देखकर इंसान दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। जो यंग जनरेशन है हमारी वो कितनी क्रिएटिव है और कितनी आर्ट लवर है। आप देखें कितना टैलेंट है हमारे पास। हमारा जो फ्यूचर का पाकिस्तान है बहुत रोशन होगा। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने ये नुमाइश देखी और ईमान अफरोज फनपारों को बेहद सराहा। फनकारों ने खताती में बेहतरीन महारत इस्तेमाल करते हुए इस फन को एक नई जहत दी है। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में मारूफ शायर और अदीब डॉक्टर इशफाक हुसैन के एजाज़ में मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुशायरे में पाकिस्तानी सिफारत खाने के कौंसलर तौसीफ खावर, सिफारत खाने के हुकाम और कम्युनिटी के अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर जहां मुकामी शोरा-ए-कराम ने अपना कलाम पेश करके शुरका से दाद समेटी, वहीं मारूफ शायर और अदीब इशफाक हुसैन ने भी अपना कलाम खूबसूरत अंदाज में पेश किया जिसे हाज़रीन ने खूब सराहा। नाज़रीन, मुल्क के मशहूर और सीनियर अदाकार सुहेल असगर को मद्दाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। तफसील बता रहे हैं हसन नासिर सिद्दीकी। ये शुक्र कर रही है कि चांद नजर तो आया, और दूसरी जल रही। अब जो मुड़ के देखा इधर तो एक और बैठी थी, वहां देखो एक और बैठी थी, और सब कह रही थी बैठा रही हो मेरे चांद, हिलियो मत। ड्रामा इंडस्ट्री में मिसाली किरदार निभाने और फ़न अदाकारी के जौहर दिखाने वाले मारूफ अदाकार सुहेल असगर का शुमार मुल्क के कामयाब और बेहतरीन अदाकारों में किया जाता है। सुहेल असगर ने तालीम मुकम्मल करने के बाद रेडियो पाकिस्तान से अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया और 1978 से 1988 तक वो रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक रहे। वो पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामा रात से टीवी स्क्रीन पर जलवागर हुए, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए बेशुमार ड्रामों में अदाकारी की। उनका शुमार टीवी इंडस्ट्री के कामयाब और बेहतरीन अदाकारों में होता था। उन्होंने दीगर टीवी चैनल्स के लिए भी कई ड्रामे किए, जिसमें चांद गिरहन, प्यास, ख्वाहिश, दुख सुख, खुदा की बस्ती, लाग और काजल घर समेत मुताद्दिद ड्रामे शामिल हैं। सुहेल असगर का शुमार शोबिज़ इंडस्ट्री के एक सीनियर और बासलाहियत आर्टिस्ट में होता था। बेहतरीन अदाकारी की बदौलत वो अपने मद्दाहों के दिलों में जिंदा रहेंगे। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सदर जो बाइडन के डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों ने वस्त मुद्दती इंतखाबात में हफ्ते को सेनेट में बढ़तरी बरकरार रखी है। रियासत नोएडा में डेमोक्रेट सेनेटर कैथरीन कोर्टेज अपनी निशिस्त दोबारा जीतने में कामयाब रहीं। इस तरह उन्होंने पार्टी को 50 निशिस्तें दिला दी जो इसकी अक्सरियत के लिए ज़रूरी थीं। इस कामयाबी से डेमोक्रेटिक पार्टी को सेनेट में बालादस्ती हासिल हो गई है और ऐवान बाला में 50-50 निशिस्तों के टाई की सूरत में नायब सदर कमला हैरिस का वोट फैसला कुन साबित होगा। जनूब मशरकी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान का इजलास कंबोडिया में ख़त्म हो गया। इजलास के दौरान मशरकी तैमूर को आसियान के 11वें रुकन के तौर पर तस्लीम करने पर उसूली इत्तफाक किया गया। चीन, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं ने भी इजलास से खिताब किया। सदर जो बाइडन ने कहा कि अमरीका, जनूबी कोरिया और जापान शुमाली कोरिया के बारे में पहले से ज़्यादा मरबूत हैं, जिसने इश्तियाल अंगेज रवैया जारी रखा हुआ है।
کمبوڈیا میں جاپانی وزیر اعظم فومیو کشیڈا اور جنوبی کوریا کے صدر یون سک پیول کے ساتھ سہ افریقی مذاکرات کے بعد بات کرتے ہوئے جاپان کے وزیر اعظم نے کہا کہ شمالی کوریا کی طرف سے ممکنہ اشتعال انگیزی خطرناک ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر نے کہا کہ اتحادیوں کے درمیان تعاون شمال مشرقی ایشیا میں امن اور استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اجلاس کے اختتام پر تنظیم کی سربراہی انڈونیشیا کے صدر جوجو وڈوڈو کے درمیان حوالے ہو گئی۔ انہیں آسیان کا علامتی ہتھوڑا پیش کیا گیا۔ اجلاس میں میانمار کی صورتحال، یوکرین جنگ، علاقائی امن و تعاون، ماحولیاتی ہم آہنگی اور انصاف سمیت گزشتہ سال کی 5 نکاتی امن اتفاق رائے پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ادھر ہسپانوی کوسٹ گارڈ کے اہلکاروں نے 45 تارکین وطن کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ تارکین وطن ایک لکڑی کی چھوٹی کشتی کے ذریعے غیر قانونی طریقے سے یورپ میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ کوسٹ گارڈز کے مطابق مغربی کے تارکین وطن کو گران کینری جزیرے کے جنوبی حصے میں ڈوبنے سے بچایا گیا۔ شمالی افریقہ سے سالانہ ہزاروں لوگ یورپ میں داخل ہونے کے لیے سمندر کا خطرناک سفر طے کرتے ہیں۔ اسپین کی وزارت داخلہ کے مطابق 2020 میں 23,271 جبکہ 2021 میں 22,316 تارکین وطن نے کشتی کے ذریعے جزائر کینری کو عبور کیا۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال تقریباً 4,400 افراد اسپین پہنچنے کی کوشش میں سمندر میں ڈوب گئے۔ یورپی کمیشن نے خبردار کیا ہے کہ افراط زر میں جاری اضافے کی وجہ سے یورو زون موسم سرما میں کساد بازاری کا شکار ہو جائے گا۔ تازہ ترین اقتصادی پیشگوئی کے مطابق توانائی کے بھاری بل صارفین کی قوت خرید پر اثر انداز ہو رہے ہیں، جس سے رواں سال افراط زر کی شرح 8.5% تک جا سکتی ہے۔ امکان ہے کہ جرمنی آئندہ سال اقتصادی لحاظ سے بدترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والا ملک ہوگا اور آئندہ برس کے دوران جرمنی کی اقتصادی پیداوار میں 0.6% کمی کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ مشرقی افریقی ملک یوگانڈا میں ایبولا وائرس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ وبا کے باعث ملک میں 53 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ متاثرہ مریضوں کی تعداد 135 سے تجاوز کر گئی ہے۔ یوگانڈا کے وزیر صحت کے ایک بیان کے مطابق جنجا شہر میں متاثرہ افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ملک میں ایبولا وبا کی روک تھام کے لیے اسکولوں کی تیسری سہ-ماہی 25 نومبر کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یوگانڈا میں ایبولا کا پہلا کیس 19 ستمبر کو رپورٹ ہوا تھا۔ امریکہ میں ایئر شو کے دوران دوسری جنگ عظیم میں استعمال ہونے والے 2 طیارے فضا میں ٹکرا گئے، جس کے نتیجے میں عملے کے 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی ایویشن حکام کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والے طیاروں میں سے ایک بوئنگ B-17 فلائنگ فورٹریس اور دوسرا P-63 کنگ کوبرا لڑاکا طیارہ تھا۔ دونوں طیارے ڈالس کے قریب ایک ایئر شو میں حصہ لے رہے تھے۔ B-17 طیارے میں 5 اور P-63 کنگ کوبرا طیارے میں صرف ایک پائلٹ موجود تھا۔ ویدر اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالقدیر۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، بالائی پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لہ -9، کالام، سکردو -5 اور استور میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مختلف شہروں کے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد 6، لاہور 15، کراچی 20، پشاور 9، کوئٹہ 7، گلگت -1، مظفر آباد 8، مری 6، دیر 1، چترال 4، راولہ کوٹ 0، معلم جبہ 3، فیصل آباد 14، ملتان 16، سرگودا 13، سری نگر 1، جموں 11، لہ -9، پلوامہ 9، اننت ناگ 9، شوپیاں 7 اور بارہمولہ میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے، کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔